Hello student, good morning all. Here I am going to start your chapter number 5, that is more on HTML. In CSS. HTML you have learned in 7th standard already. Here this is the more on HTML, means something is add on in the HTML like CSS. Okay, let us talking about what are the CSS, introduction and the background properties and inline style. Let's see what is. First of all, about CSS, we have to know what is CSS. We have learned about like HTML, that is hypertext markup language, and this is its structure, various texts and how they are used to create web pages. We have learned in 7th standard, and today we are starting from CSS, that is cascading style sheet. The CSS stands for cascading style sheet, means something is giving the design to HTML here. Okay, मतलब कुछ ना कुछ जो भी हम अपने HTML में क्रिएट करते हैं फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस, उसमें कितना और हम उसको लुक एंड फील दे सकते हैं. दिस इज कॉल्ड HTML with CSS. CSS stands for cascading style sheet here, and CSS works with HTML to control the presentation of your web pages. Means जो आप वेब पेजेस पर अपनी प्रेजेंटेशन देते हो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? CSS. कंट्रोल से मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप उसको किस फॉन्ट में किस स्टाइल के साथ प्रेजेंट कर रहे हो. इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग हेयर. ओके, CSS saves a lot of efforts. How? It can control the layouts of multiple web pages all at once. एक साथ बहुत सारे layouts को कन्फिगर करता है, मीन्स कंट्रोल करता है. इट इज कॉल्ड CSS. ओके, तो वर्किंग क्या हो गई हमारी CSS की? दैट इज कंट्रोलिंग द ऑल ओवर पेजेस एट वंस. मीन्स एक बार में बहुत सारे पेजेस को कंट्रोल कर रहा है. इन सिंपल वर्ड, CSS इज यूज्ड टू स्टाइल द वेब पेजेस. आप सिंपल वर्ड में क्या समझिए कि किसी HTML पेज के को जो स्टाइल दे रहा है वो क्या हो गया आपका? CSS. And CSS enhances the look and feel of your web pages as we discussed earlier and make them more presentable. और ज़्यादा इसको presentable हम उस look and feel के साथ में उसको present कर सकते हैं. मीन्स जो हमारे ऑडियंस है, जो लिसनर है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको. You have learned about the basic syntax rule of CSS in previous stand. बहुत सारे आपने rules पहले ही आपने पढ़े हुए हैं. Let us have a quick recap that is here given in your book also. Their syntax of CSS style rule. But listen, here we are discussing only the theoretical part. Okay, so you have to know what is the CSS and why we are using the CSS and how it is used. These things we will discuss in practical work. हम प्रैक्टिकल में सब कुछ इसका सीखेंगे, बस हमें आज क्या पढ़ना है? सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है. मीन्स व्हाट इज CSS, व्हाई वी यूज CSS and what are the places where we can use the CSS. So here syntax is like color blue and font size is 12 pixel. It is given in your book, that is figure number 5.1 in on page number 57. So here the color आपका जो आइडेंटिफाई किया हुआ है ब्लू से, एंड फॉन्ट साइज कितना सेट किया हुआ है? 12 पिक्सल्स. So this type of work we can do by the CSS. Next is we have CSS background property. मीन्स CSS जो होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रेजेंट, मतलब ये चीज़ आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड कराता है. द CSS background properties are used to add the background effects for HTML elements. कितने टाइप के इफेक्ट्स को हम उसमें ऐड कर सकते हैं? With the help of CSS we can set the images. This property is used to set the background image. आप किसी भी HTML पेज पर अगर कोई इमेज लगाना चाहेंगे तो you have to use background image first of all. Okay, if you want to change the color you have to use background color. आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी वहाँ पर देनी होगी. आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द कलर ऑल्सो, लाइक येलो, रेड, वट एवर यू वॉन्ट. बैकग्राउंड पोजिशन मीन्स आप किस पोजिशन पे किस टाइप की आप पोजिशन पे किस टाइप की इमेज को सेट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड पोजिशन एंड यू कैन सेट द बैकग्राउंड पोजिशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज टू 100 पिक्सल
ओके 100 पिक्सल एट अ टाइम, एक बार में आप 100 पिक्सल भी दिखा सकते हो किसी इमेज के लिए. And background repeat is used for property is used to control the repetition of background means एक background आपने यूज किया वो कितनी बार रिपीट करना है. सपोज यू हैव यूजिंग हेयर वन इमेज, आपने एक इमेज सिर्फ यूज किया, अब आप चाहते हो यही इमेज दोबारा से यहाँ पे भी शो हो जाए, यहाँ पे भी शो हो जाए, मतलब टू और मोर देन 2 टाइम्स यू वांट, तो you can use background repeat. Okay, so repeat is for using for repetition of the background. Next is we have inline style. What is the inline style here? Listen, usually CSS is written in a style tag. आपका जो CSS है, अगर हम CSS को यूज करते हैं तो उसके लिए हमें स्टाइल देना होता है. लाइक हम HTML के अंदर पहले क्या लिखते हैं, लाइक बॉडी पार्ट. सबसे पहले हमने HTML टैग के अंदर बॉडी पार्ट या हेडिंग के बाद में हमें बॉडी पार्ट देना होता है, वेयर वी हैव टू रिटर्न द होल बॉडी declarations. And for CSS we are using, if we are using the CSS we have to use the tagline that is style. So style represent the CSS property. If you are using without style, it means it is simple HTML code. And if you are using the style property also, it is called style means CSS property. And usually CSS is written as style tag inside of head tag. Head tag के अंदर आपको स्टाइल टैग देना होता है. बट देयर इज वन मोर प्लेस विच इज ऑल्सो वैलिड. आप और एक जगह ऐसी है जिसमें आप उसको लिख सकते हो. यू कैन राइट CSS इनसाइड द टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट. आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर भी CSS को लिख सकते हो. व्हेन CSS इज रिटन यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड इनलाइन. और जब इस स्टाइल के अंदर आप किसी CSS को लिखते हो तो इसे क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइल. And basically inline style looks and operates much like CSS. बहुत हद तक ही कैसा लगता है CSS की तरह, with a few differences. बहुत कम differences है. Like inline styles directly affect the tag they are written in without the use of selectors. अगर कोई चीज़ select नहीं की गई है तो उसको directly affect करता है. The style attributes just like any other HTML attribute. बहुत हद तक ऐसे होता है कि जो आपके HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी तरह वर्क करता है. इट गोज इनसाइड द एलिमेंट्स बिगनिंग. ये कहाँ पे लिखा जाता है, इन द इनसाइड द एलिमेंट्स बिगनिंग टैग राइट आफ्टर द टैग नेम. टैग नेम को लिखने के बाद जस्ट उसके राइट के स्टार्टिंग में आपको ये लिखना होता है. एंड द एट्रीब्यूट स्टार्ट विथ स्टाइल फॉलोड बाय साइन इक्वल, देन फाइनली यूजेस डबल कोट्स. आपको डबल कोट्स यूज करने होते हैं लाइक दिस. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. एंड विच कंटेन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, जो आपकी एट्रीब्यूट की वैल्यू को कंटेन करता है. इट मीन्स इट इज द इनलाइन स्टाइल. एंड डू नॉट फॉरगेट द यूज सेमीकोलन ऑल्सो. वी हैव टू यूज द सेमीकोलन आफ्टर ईच पेयर. ओके, जितने पेयर्स हम इसमें यूज करते हैं सबके लिए हमें सेमीकोलन लगाता है. मीन्स ये पेयर्स को सेपरेट करता है. ओके, सो इनलाइन स्टाइल मीन्स, अगर आपने इसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ पेज नंबर 60, P पैकेट ओपन कलर ब्लू एंड फॉन्ट साइज इज 46 पिक्सल, दैट इज गिवन हियर CSS प्रॉपर्टी. मीन्स आप सेमीकोलन से उसको सेपरेट कर रहे हो, कलर अलग है, फॉन्ट साइज अलग है, एंड यू विल सेपरेट द कॉलन ऑल्सो. ओके, so this is the work of your CSS. Left topic we will discuss in our next class. Till that you have to read your chapter once again, and so that you can see the video and take the benefit also. Thank you.